Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the classification of algae in detail. So let's move to the classboard. So dear students, classification of algae So as I have told you in the previous lecture that the classification of algae is largely based upon the pigments. Clear? Means कि algae की जो हम classification पढ़ते हैं, हमने जो previous lecture में भी एक tabulated form में हमने की थी, वो किसके ऊपर बेस कर रही है? On the photosynthetic pigments. So the classification of algae is largely based upon the photosynthetic pigments. So on the basis of photosynthetic pigments, we have classified algae into 6 different classes. So starting from the first one, they are called as, number 1, the euglenoids. So dear students, you tell me that to which phyla they belong. इनका phylum कौन सा है? हमने previous lecture में table के अंदर इसकी detail पढ़ी थी. So they belong to phylum. The phylum is Euglenophyta. Clear? The phylum is Euglenophyta. Clear? And their form means the life form in which they exist is, dear students, कौन सी form है? Unicellular, multicellular or colonial, or none of them? So that's MCQ for you. Yes, you are right, that is unicellular. All of them, they are unicellular. Okay? And what kind of pigments they possess? The pigments they possess, they have chlorophyll A, and chlorophyll B, and carotenoids. Clear? And as far as the locomotion is concerned, so they locomote by means of flagella. So they have 2 flagella. और इनका जो फ्लैजिला हैं वो कुछ इस तरह से हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग. One is long and one is short. और स्टूडेंट्स, यूग्लिनॉइड्स का एक एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है जो आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है. So their evolutionary significance. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद अच्छे तरीके से कि चैप्टर नंबर 5 में जब हमने पढ़ा था, जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई थी, 2 किंगडम्स बनाए गए थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इनिशियली इट वाज प्रेजेंट इन द किंगडम प्लांट.
लेकिन बाद में थोड़ी सी रिसर्च से पता चला कि इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि एनिमल्स की तरह के और कुछ जो है वो प्लांट्स की तरह के हैं, जिसकी वजह से फिर आपको याद है कि ये किंगडम प्रोटिस्टा के वाले से एक नई कहानी चल पड़ी कि इनको अलहदा से प्लेस किया जाए। वो हमने इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसको डिटेल से डिस्कस भी किया। सो they have similarities with plants, means they are plant like। वो कौन सी similarities हैं? They have photosynthetic pigments. They have photosynthetic pigments, and they are autotroph. If they have photosynthetic pigments, so they are autotrophs. They are doing photosynthesis. They are photosynthetic. Clear? But they also have some similarities with animals. They are also animal-like, and closely related to, they are closely related to, जी डियर्स, ये एनिमल्स में किससे क्लोज रिलेटेड है? आपको याद है जब हमने इसी चैप्टर में जब मेजर ग्रुप्स स्टार्ट किए थे, जो पहला ग्रुप हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ, उसके प्रोटोजोआ के जो फर्स्ट जो हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी, वो टेबल बनाया था मैंने, उसकी जो 6 ग्रुप्स से बनाए गए थे, उसमें आप देखिएगा खोल के, और होपफुली आपको पता भी होगा, इन ज़ूफ्लैजिलेट्स जो हमने पढ़ा थे प्रोटोजोन्स के अंदर, ज़ूफ्लैजिलेट्स, उसकी एग्जाम्पल में यूगुलिना लिखा हुआ है। क्लियर? उसको ज़रूर देखिएगा, बल्कि अभी अपना पेज उसको जो है उसको टर्न करें, उसको देखें। सो दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ज़ूफ्लैजिलेट्स। उसकी क्या रीजन? क्योंकि इनके पास फ्लैजिला मौजूद है। सो दे, जैसे कि हमने कहा, दे हैव फ्लैजिला। इसके अलावा इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जरा एमसीक्यूज के लिए मार्क करें। दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ज़ूफ्लैजिलेट्स एंड दे लैक सेल वॉल। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, जैसे कि एनिमल सेल्स में भी नहीं होती। ठीक है, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तीसरा, देयर मॉलिक्यूलर डाटा resembles with animals, वो एनिमल्स के साथ रिजेंबल कर रहा है, मीन्स ज़ूफ्लैजिलेट्स। इसके अलावा भी when they are grown in dark, when they are grown in dark, यानी जब उनको अंधेरे में रखा जाए काफी देर के लिए, they lose the pigments, अपने पिगमेंट्स को लूज कर जाते हैं, and start feeding and start ingesting मतलब कि इंजेक्शन कर रहे हैं। और इंजेक्शन किसका क्राइटेरिया है? ये कौन से जो है वो ऑर्गेनिजम्स करते हैं? दे आर द एनिमल्स। स्टार्ट इंजेस्टिंग द ऑर्गेनिक मैटर so behave as heterotrophs। क्लियर? तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये इसका कुछ एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क कर लें प्लीज। तो ये कई दफ़ा साइंटिस्ट ने इसको एल्गी के अंदर प्लेस किया, ठीक है, क्योंकि प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स से, फिर कई दफ़ा फिर एनिमल्स के यानी कि ज़ूफ्लैजिलेट्स के साथ भी इसको प्लेस किया जाता रहा, क्योंकि इसके ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे थे। सो दैट इज़ द एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस यूग्लिनॉइड्स। क्लियर? और इसकी एग्जाम्पल में आप कोट करेंगे, दैट इज यूग्लिना।
Clear? So it looks somewhat like this, a pear-shaped. Appearance is there. So here is short flagella, and this is the long flagella. Clear? And here are the photosynthetic pigments. Clear? And as it is eukaryote, so it will have a nucleus, and all other organelles are there. So this is the basic structure of euglena. So this is long flagellum, and this one is a short flagellum. Clear? It is the nucleus and the chloroplast and the photosynthetic pigments. So now the second one are the dinoflagellates. Dear students, ये बहुत मजे का जो है ये क्लास है जो अब हम स्टडी करने लगे हैं. That are the dinoflagellates. Now, number 2, the dinoflagellate. So dear students, ये dino और flagellum ये दो words का combination है basically. So dinos, it's a Greek word. It's a Greek word which means whirling. और flagellum, that is basically a Latin word. ये दो words हैं, दो different languages के, एक लातीनी का एक यूनानी ज़ुबान का. और flagellum का यहाँ पर meaning है to wipe. To wipe, जैसे वाइपर्स देखिए आपने गाड़ी के इस तरह से to and fro, और whirl का मतलब होता है ऐसे घूमते हुए जाना. इनकी एक खास किस्म की जो स्विमिंग है उसके बिहाफ के, जैसे पानी में तैर रहे होते हैं, उसके बिहाफ के ऊपर इनका नाम रखा गया है dinoflagellates. और इनके अंदर भी डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि एनिमल्स की तरह के और कुछ ऐसे करेक्टर्स जो कि प्लांट्स की तरह के हैं. क्लियर? चूंकि ये भी फ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है, लाइक द जू फ्लैजिलेट्स. ठीक है, तो फ्लैजिला, फ्लैजिलम बेसिकली मूवमेंट है मतलब कि सो दैट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन. सो मूव करते हैं इसके फाइलम की तरफ. जी डियर स्टूडेंट्स, कौन सा फाइलम है इनका? द फाइलम इज पायरोफाइटा. यू आर राइट, पायरोफाइटा. क्लियर? एंड द फॉर्म, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? दे आर यूनिसेलुलर. They are unicellular. Clear? And what about the pigments? So they have some unique pigments in them. They have chlorophyll A. They have chlorophyll C. They have carotenes, and they also have fucoxanthin. Clear? They also have the fucoxanthin. आपको बताया था कि fucoxanthin ये ब्राउन और ओलिव ग्रीन कलर की एक खास किस्म की पिगमेंट है जो कि डाइनोफ्लैजिलेट्स और डाई एटम्स और ब्राउन एल्गी के अंदर मौजूद है. क्लियर? सो पिगमेंट्स.
And now the locomotion. What about the locomotion? So they locomote by having two flagella. So they have two flagella. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी flagella जो है वो बड़े एक मजे की अरेंजमेंट है इनकी। एक flagella इसका होता है लॉन्गिट्यूडिनल, और एक इसका जो फ्लैजिलम है दैट इज ट्रांसवर्सली अरेंज्ड। एक जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे नीचे की तरफ और एक ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन पे। इसी वजह से तो ये वर्ल करते हुए जाते हैं। फ्लैजिला का क्या काम है? वाइप करना। तो ये ऐसे घूमते हुए जैसे बॉल ऐसे रोटेट भी कर रही है और साथ में ऐसे स्विम भी कर रही है। बहुत जबरदस्त किस्म का ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से इनका नाम रखा गया है द डायनोफ्लैजिलेट्स। The dinoflagellates are one of the most unusual, ये मैं इसको मार्क कर रहा हूं डिफरेंट मार्कर के साथ, द मोस्ट अनयूजुअल फाइला। प्रोटिस्ट्स के अंदर प्रोटिस्ट के अंदर बड़ी वैरायटी है, बड़े अजीबोगरीब किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल फाइला। अनयूजुअल का क्या मतलब होता है? गैर मामूली। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बाकियों से बहुत डिफरेंट है। सो मोस्ट अनयूजुअल फाइला, प्लीज इसको मार्क कर लें, अंडरलाइन कर लें। मोस्ट अनयूजुअल फाइला डायनोफ्लैजिलेट्स, एमसीक्यूज, ये एमसीक्यू है, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल फाइला ऑफ द प्रोटिस्ट? सो ऑप्शन विल बी गिवन the euglenoids or dinoflagellates or the diatoms or red algae or brown algae. The correct answer is dinoflagellates. Why? The question arises why this is written. Clear? कि इनको one of the most unusual phyla क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर है dear students, they possess a property, इनके पास एक खास किस्म की एक प्रॉपर्टी है called, इसको मैं हेडिंग वाले मार्कर से लिखना चाहता हूं जिसकी वजह से इनको अनयूजुअल कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस का क्या मतलब होता है? चमकना। और बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है किसी जानदार का चमकना। आपने जुगनू देखे हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, द फायरफ्लाई, वो भी क्या करते हैं? रात के वक्त वो ग्लो करते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एग्जैक्टली द सेम मैकेनिज्म इज ओवर हियर विद दिस डायनोफ्लैजिलेट्स, कि इनके अंदर भी वो बायोल्यूमिनेसेंस मौजूद है। ये रात के वक्त चमकते हैं और अगर आप वो नज़ारा देख लें तो आप अपने रब का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं वो करेंगे, और आप हैरान होंगे इस कारीगरी के ऊपर अल्लाह ताला की, कि समंदर के अंदर ऐसे जैसे वो लाइटें बिखरी पड़ी हैं, और आप जहाँ जहाँ पे पाँव रखते जाते हैं आपके फुटप्रिंट्स वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं। यू मस्ट लुक एट द वीडियोज ऑफ द बायोल्यूमिनेसेंस ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स। बहुत ज़बरदस्त नज़ारा होता है रात के वक्त, जब ये वहाँ पर पानी के अंदर ये ब्लू कलर की लाइट्स चल रही होती हैं, और ऐसे लगता है जैसे हम किसी अजीब ही एक सैयारे के ऊपर आ गए हैं, या किसी एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं वो जो दुनिया से, इस अर्थ से हट के है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डायनोफ्लैजिलेट्स। दैट इज द रीजन, इस वजह से इनको कहा जाता है दैट दे आर वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब गैर मामूली कोई सलाहियत इनके अंदर है, और वो अल्लाह ताला ने इनको जो गैर मामूली सलाहियत दी है दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस, जैसे कि जुगनू के अंदर। अच्छा डियर, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? सबको फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट आपको बताता चलता हूं। बायोल्यूमिनेसेंस के लिए दो चीजें चाहिए। एक सबस्ट्रेट है इनके अंदर एक्चुअली होता है सबस्ट्रेट। दे पोजेस ल्यूसीफेरिन,
दैट इज अ सबस्ट्रेट, इनके अंदर मौजूद है, ये खास किस्म की प्रोटीन है, और इस लूसीफेरिन को बाइंड करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, और उससे निकलते हैं फोटॉन्स। फोटॉन समझते ना, लाइट। सो इस मैकेनिज्म को, इस रिएक्शन को कैरी करवाने के लिए अल्लाह ताला ने इनको एक एंजाइम दिया, और वो एंजाइम है लूसीफेरेज, लूसीफेरेज एंजाइम। क्लियर? और डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 23 बायो एनर्जेटिक्स इन सेकेंड ईयर, उसके अंदर भी इस एंजाइम का जिक्र है। वहां पर तंबाकू के प्लांट के ऊपर, टोबैको प्लांट के ऊपर बाकायदा तौर पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, ठीक है। और वो जब उनके ऊपर ये लूसीफेरेज और जो है वो उसके लूसीफेरेज को स्प्रे किया जाता है, लूसीफेरिन और लूसीफेरेज का आपस में रिएक्शन होता है, तो वो प्लांट ग्लो करता है रात के वक्त। ये तो खैर उन्होंने जेनेटिकली इंजीनियर किया, लेकिन यहाँ पर ये कुदरती तौर पर इनके अंदर मौजूद है। जो फायरफ्लाई, जुगनू, उनके अंदर भी ऐसे ही ये मैकेनिज्म मौजूद है, ठीक है। और यानी इसका काम क्या है कि लूसीफेरिन जो इनके अंदर सबस्ट्रेट है, ये प्रोटीन है, उसको ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाना। जैसे वो इसके साथ बाइंड होती है, उसमें से फोटॉन्स एमिट होना शुरू हो जाते हैं, और जब फोटॉन्स एमिट होती हैं तो दे ग्लो। So that is the bioluminescence which is present in the dinoflagellates, and that is the reason it is called as the unusual, most unusual, one of the most unusual phyla of the protists. अब डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसकी सेल वॉल की तरफ, थोड़ी सी कंपोजिशन पे आ जाते हैं। देयर सेल वॉल the cell wall are covered by shells, उनके ऊपर होते हैं shells, और shells जो होते हैं which have shells of interlocking cellulose plates, किससे बनती हैं? इसको MCQ के लिए मार्क कर लें। cellulose plates impregnated with silicates, impregnated with silicates। ये इनकी खास बात है कि इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं, so look at this, जैसे अखरोट देखा आपने, वॉलनट, उसी तरह से ये दिखने में लग रहा होता है अपेरेंटली। सो यहां पर इनकी मौजूद है प्लेट्स, ये एक्चुअली बनी हुई है सेलुलोज से, और इनके अंदर इम्प्रेगनेट का मतलब है कि इनके साथ मिक्स्ड है द सिलिकेट्स। सो दीज आर द सेलुलोज प्लेट्स। हार्ड है क्योंकि इनके अंदर सिलिकेट्स मौजूद हैं। क्लियर? सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स।
क्लियर। और इसी तरह से इधर मौजूद हैं। सो आई एम इधर जस्ट मैं प्लेट्स बना देता हूँ। तो कलर आप खुद कर लीजिएगा, क्लियर। इसमें इतने हिस्से में अब इसमें मैं बताने लगूँ इसकी पोजीशन, इसमें फ्लैजिलम किस तरह से है। अच्छा दोस्तों ये देख रहे हैं, ये दरमियान में ये वाला, इसे कहते हैं ग्रूव, दैट इज ग्रूव, ग्रूव करें गड़े को, ठीक है। तो इसका फ्लैजिलम देखिएगा, एक फ्लैजिला इसका इस तरह से है और एक फ्लैजिला इसका इस तरह से है। ये दो फ्लैजिलम इसके अंदर मौजूद हैं। एक दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स flagellum, and this is the longitudinal flagellum. और ये स्टूडेंट्स ये किसके अंदर मौजूद हैं? दे आर प्रेजेंट इन द ग्रूव, ये ग्रूव कहलाता है, जो गड़ा जिसके अंदर ये मौजूद है। और व्हाट आर दीज? दीज आर द सेलुलोज प्लेट्स, cellulose plates having silica, SiO2 silicates in them. और ये जो बुक में डायग्राम बनी गई है, ये बनाई गई है, दैट इज बेसिकली ऑफ द गोनोलैक्स, आपको बताया था इसके टेबल के अंदर। सो दिस इज बेसिकली अ गोनोलैक्स। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस डायनोफ्लैजिलेट्स, क्लियर। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स इनकी एक और बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस इकोलॉजिकली अगर देखा जाए, क्लियर, if we look them at the ecological way, so ecologically dinoflagellates are most important producers, ये क्या है? They are the producers of marine ecosystem, किसका? Marine, समंदर, the seas and oceans, marine ecosystem, clear? And they are second to diatoms. So they are second to diatoms, मतलब कि एज अ प्रोड्यूसर्स ये जो एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन चलती हैं, और एक्वाटिक में कौन सा? मैरीन इकोसिस्टम, हम फ्रेश वाटर की बात नहीं कर रहे, मैरीन इकोसिस्टम के अंदर ये सेकंड जो प्रोड्यूसर्स हैं। सबसे पहला नंबर जो है वो डायटम्स का। हमने बात की थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो एल्गी होते हैं, दे आर डूइंग 50 to 60% ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें से सबसे टॉप पे मौजूद हैं डायटम्स, सेकंड पे मौजूद हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, क्लियर। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनके हवाले से, इसको एमसीक्यू इसके लिए मार्क कर लें, दे आर सेकंड टू डायटम्स, क्लियर, एज अ प्रोड्यूसर्स, सो मींस they are involved in food chains, ठीक है। The aquatic food chains are also run by them, यानी कि सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत सारे हैं, उनमें से एक ही हैं जो कि एक्वाटिक फूड चेन्स होती हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, दैट इज रेडिटाइड्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क कर लें। बाज़ औक़ात देयर आर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देयर आर द
the dinoflagellates have occasionally population explosions called algal bloom. Algal blooms, उनको algal blooms भी कहा जाता है. Clear? And these organisms color the water orange, red, or brown. Clear? Creating red tides. Creating red tides means कि ये वहाँ ओकेशनली कुछ जगहों के ऊपर ये इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं कि इनकी तादाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है और दे कॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स, और इनकी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब इतनी तेज़ी के साथ जो इनकी ग्रोथ हो रही होती है उसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसके नीचे जो पानी होता है वो आप ऊपर से देख रहे हों, if you are looking at the camera, ऊपर से देखें, there are some diagrams available also, तो आप देखेंगे आपको ब्राउन कलर की, ऑरेंज कलर की और रेड कलर की वो लहरें ऐसे तैरती हुई नजर आ रही होंगी, ठीक है। रेड कलर की जैसे खून तैर रहा है, ठीक है, खून की लहरें आ रही हैं, रेड टाइड्स उनको कहा जाता है। वो उसकी रीज़न ये होती है वहाँ पर किसी का कोई कत्ल नहीं हुआ, वहाँ पर किसी ने कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पर नहीं मरा। क्या होता है कि आमतौर पर वहाँ पर होती हैं रेड टाइड्स बनती हैं, किन की वजह से, ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ दिस डायनोफ्लैजिलेट्स। और डियर स्टूडेंट्स ये खास किस्म के एक टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं ये डायनोफ्लैजिलेट्स, जहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है, दे रिलीज न्यूरोटॉक्सिन्स। दे रिलीज न्यूरोटॉक्सिन्स। न्यूरोटॉक्सिन्स ऐसे टॉक्सिन्स को कहा जाता है जो नर्वस सिस्टम के लिए जो है वो खतरनाक होते हैं, और उसकी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं ये उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। जो पानी पी जाते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स तो वो उनकी वहाँ पर फौरी डेथ होना शुरू हो जाती है, चाहे वो फिश है या कोई भी और ऑर्गेनिजम्स हैं ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे जहाँ पर ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, तो वहाँ पर एनिमल्स के लिए वहाँ पर खतरा ही खतरा मौजूद होता है। तो ज़रूर ये वाली वीडियोस देखिएगा, बायोल्यूमिनेसेंस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। आपको आप जस्ट अगर टीवी पे देख रहे हैं तो आपको इतना मज़ा आएगा, और सोचें कि अगर आप इफ़ यू आर गोइंग लाइव, अगर आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो वो नज़ारा कैसा होगा कि जिसमें रात का वक्त है, ऊपर बिल्कुल अंधेरा और नीचे एक वो ब्लू कलर की लाइट्स और वाइट कलर की लाइट्स हैं पानी के अंदर वो लहरें आ रही हैं पानी के अंदर, वो लाइट्स ग्लो कर रही हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल एज द बायोल्यूमिनेसेंस। क्लियर? और इसकी एग्जांपल वो गोनियोलैक्स और क्रेटियम हमने पहले भी पढ़ी थी एग्जांपल्स में। सो इट्स एग्जांपल्स includes goniolax and curatium। क्लियर? और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और ख़ास तौर पर इनकी जो सी स्वर्लिंग मूवमेंट होती है, जब वर्ल करते हुए, ये फ्लैजिला का तो काम है वाइप करना, ये वाइप इस तरह से जब एट अ टाइम कर रहे होते हैं, ये वाइप करते हैं तो ऐसे घूमता हुआ जैसे किसी बॉल घूमती हुई जा रही होती है, इस तरह से ये पानी के अंदर तैरते हुए जा रहे होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द डायटम्स। So the phylum is dear students, what's the phylum of diatoms? That is Chrysophyta. Phylum is Chrysophyta, and
the form is usually unicellular, and as far as the pigments are concerned, so they have almost the similar pigments like the dinoflagellates. They possess chlorophyll A, chlorophyll C, carotenes, including fucoxanthin, clear? And as far as the locomotion is concerned, so they do not have any flagella, clear? And usually they do not locomote, clear? आमतौर पर ये लोकोमोट नहीं करते. और dear students, so the diatoms इनको डायटम्स कहते भी इस वजह से हैं क्योंकि इनके जो सेल्स हैं वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल हैं. डाई मीन्स टू, डाई एटम मतलब के पार्ट, ठीक है, दो एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं डाई एटम्स. द डाई एटम्स हैव सेल वॉल्स which are made up of silica. सिलिका मीन्स SiO2. तो जहाँ पर भी सिलिका होता है तो जो वहाँ पर अपीयरेंस किस तरह की आएगी? This one, glass appearance, clear? So they have the cell walls made of silica which overlap much like a petri dish. आपने लैब्स में पेट्री डिश देखी है ना, वो शीशे जो ग्लास की बनी होती है, दो पार्ट्स होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा. बड़ा जो है वो छोटे वाले के ऊपर ऐसे फिट आ जाता है, ठीक है, उस तरह से, बिल्कुल उस तरह से लाइक देम पेट्री डिश लाइक ओवरलैपिंग. एंड यही डिफरेंस याद रखना आपने कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स की सेल वॉल हैं दे आर मेड ऑफ सेलुलोज व्हाइल द डायटम्स दे आर मेड अप ऑफ सिलिका, क्लियर? एंड इकोलॉजिकली तो आपको बताया था that ecologically they are the most important producers of aquatic environment और aquatic ecosystem. इसमें दोनों तरह के जो हैं वो इकोसिस्टम शामिल हैं. द फ्रेश वाटर, इसमें फ्रेश वाटर के अंदर भी और मैरीन दोनों के अंदर. जबकि डायनोफ्लैजिलेट्स दे वर ओनली प्रेजेंट विद इन द वो मैरीन वाटर के अंदर मौजूद होते हैं. ये जो डायटम्स हैं ये फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों के अंदर मौजूद है और वहाँ पर ये सबसे टॉप रेटेड, मतलब कि एज देयर नंबर इज लार्ज, as they are in large number. Clear? There is large numbers. And their cell walls have glassy
appearance with intricate patterns। यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट आप अल्लाह ताला की कारीगरी देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा लगता है कि क्या ज़बरदस्त किस्म के इतने कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस हैं इनके इनकी जो सेल वॉल्स हैं, जो कि हैं तो दिखने में क्लासी, लेकिन उसके अंदर वो इनके पैटर्न्स नज़र आ रहे होते हैं। इतनी खूबसूरत कारीगरी कि अकल दंग रह जाए। लाइक दिस दे एक जैसे बिल्कुल दो पार्ट्स, ठीक है, इस तरह से इनके अंदर होते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल लुक, जैसे वो डायनोफ्लैजिलेट्स में बायोल्यूमिनेसेंस है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको एक और मजे की बात बताता चलता हूँ। अगर आपने बायोल्यूमिनेसेंस देखनी है लाइव, यू नीड टू गो टू मालदीव्स। वहाँ पर, या फिर आजकल तो वैसे जो लोगों ने एक्वेरियम्स के अंदर खास तौर पर उनका व्यू बनाने के लिए इनको वहाँ पे पाल रखा है, ठीक है, और बहुत आला माइंड ब्लोइंग व्यूज होते हैं वहाँ पर। इफ यू लुक एट देम, एंड दीज आर सम डायटम्स, और यहाँ पर इनकी कुदरत की कारीगरी देखेंगे तो दंग रह जाती है अकल के। वाह, हाउ कुड इट पॉसिबल, मतलब कि ये खुद ब खुद नहीं बन गया, इसके पीछे इसका कोई बनाने वाला है। इन चीज़ों को देखकर एक आम इंसान को, एक ऑनेस्ट और सच्चे इंसान को, एक सादा इंसान को यही एहसास होगा, किसी भी तरह का इंसान हो, लेकिन इफ द पर्सन इज ट्रूथफुल टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो वो ज़रूर ये उसका दिल से अंदर से आवाज़ आएगी ये चीज़ें देखने के बाद, ये सारी चीज़ें, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स देखने के बाद, उनमें बायोल्यूमिनेसेंस देखने के बाद, कि ये खुद ब खुद नहीं हो गया, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो ये काम करवा रही है। क्लियर? लाइक दिस। सो और भी बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स इनके एग्जांपल्स मौजूद हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द डायटम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।